We are going to start topic called range of quadratic, right? Not necessarily only the quadratic. अगर rational quadratic होगा तब भी हम लोगों को range निकालने में how to do this that we have to see. So first we are starting with range of quadratic, right? So if any quadratic is given like y is equals to x square minus 3x plus 5, the most important thing is x belongs to r. ये पूरी बात तब के लिए हो रही है when x belongs to r की बात हम लोग कर रहे हैं. You have to understand the concept, right? So if it is written y is equal to x square minus 3x plus 5, we can rewrite this as, right, step first, x square minus 3x plus 5 minus 5 is equal to 0, right? Just transfer this y and we are getting a quadratic. In this, value of a is 1, b is minus 3, c is 5 minus y, right? Now, step 2, apply discriminant greater than equal to 0 for real roots. रियल रूट्स में इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो बात पर ध्यान देना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब अगर x रियल वैल्यू है, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में ये करके रखा है, ये कब की बात हो रही है, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात मैं कर रहा हूँ तो 100% अगर x रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये पूरी की पूरी हमारी कहानी जो रुकेगी वो रुकेगी यहाँ पे, राइट? अगर d मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, देन ओनली वी कैन से कि जो हमारा एजम्पशन है वो ट्रू होगा. दैट्स द रीजन कि हमेशा अगर x बिलोंग्स टू रियल की बात हो रही है तो यू विल ऑलवेज गेट दिस d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर d की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than equal to 0, or we are getting 9 minus 20 plus 4y greater than equal to 0, y greater than equal to 11 by 4. Y greater than equal to 11 by 4 means it's started with 11 by 4 and goes up to infinity. So our range is, means the value of y is belongs to 11 by 4 to infinity. Or this is the method, right? This is the third step. You have to write down the answer in this form. First note it down, then और मैं बताता हूँ इस पे.
Done, everyone. So this is the first method what you are doing, but for the quadratic only now, y is equal to right in the quadratic it is given you can also draw the graph by graph. हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता बट बहुत सारे केसेस में यू कैन डू दिस y is equals to x minus 3 by 2 the whole square plus 5 minus 9 by 4, or we can write y minus 11 by 4 is equals to x minus 3 by 2 the whole square, right? So this is y, this is x, so y is equal to x square. y is equal to x स्क्वायर का जो नेचर होता है ग्राफ जो होता है, अगर कैपिटल Y कैपिटल X है, शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है ऑलवेज, राइट? ये नेचर होता है। अब ये डिपेंड करता है x और y पर कि उसकी वर्टेक्स कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, यहाँ और यहाँ के अकॉर्डिंगली वर्टेक्स विल शिफ्टिंग, राइट? सो अगर मैं यहाँ से देखूँ x is equal to 3 by 2 and y is equal to 11 by 4, right? So something like this. You can see the values of y. ये कैसे मूव कर रहा है, you can see this, right? जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ये इससे ऊपर ही बन रहा है। y की वैल्यू मिनिमम जो जा रही है -d/4a से ऊपर जाएगी, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -d/4a जो कि y 11/4 से ऊपर चला गया। So the answer will be 11/4 to infinity. अगर quadratic है तो you can go by this method also. Is it okay, everyone? Yes, sir. Now, but ये केवल जरूरी नहीं कि आपके पास quadratic के लिए ही हो सकता है rational quadratic, और रैशनल क्वाड्रेटिक का मतलब होता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का फॉर्म हो। एल का मतलब है लीनियर, क्यू का मतलब है क्वाड्रेटिक। प्रोसेस सेम रहेगा, ग्राफिकल जाना आपको दिक्कत होगा, बट algebraically you can always solve this as x upon x square plus x plus 1। मान लो ये गिवन है, फाइंड रिंग, राइट? रिंग मतलब y की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। ओके आदित्य? Yes, sir.
Look, how to solve. Cross multiply. Making the quadratic. Now, value of A is y, B is y minus 1, C is y. You are making quadratic for x, then the coefficients are A, B, and C. Now apply d greater than equal to 0, means b square minus 4ac y square minus 2y plus 1 minus greater than equal to 0, or multiply with the minus sign, less than equal to 0. So we have to factorize this. 3y less than equal to 0. Make the number line. In this number line, one value is minus 1, other is 1 by 3. In between and including the value. So your answer is minus 1 to 1 by 3, both closed. How many of you got this? Write down yes in chat. Very good everyone. Very basic thing, but calculation and equality both are very important, right? Done everyone? Yes, sir, done. Now, so next question on this part, you can go with y is equals to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. Try this one. Find range of this rational quadratic.
वेरी गुड. अस्का, अस्मी, अमन, जेबल, केविन, मानस, रक्षित. वेरी गुड. शुभम. वेरी गुड. I need answer from more people. Pritain, Haripriya, Hitans, Kalpak, Piyush, Partinav, Sagar, Tiana, Uday, Utsav, Vatsal, Aswin. So yes, very good. Let's see क्या आ रहा है, देखते हैं. We can rewrite this as yx square y into x plus y is equal to x square minus x plus 1, x square common out, y minus 1, y plus 1 into x plus y minus 1 is equal to 0, right? A is equal to y minus 1, b is equal to y plus 1, c is equal to y minus 1. D must be greater than or equal to 0. So b square means minus 4ac greater than or equal to 0, right? Calculation part is very important in this, right? ध्यान से देखना. मैं ऐसा पसंद करता हूँ, y plus 1 whole square minus 2y minus 1 2y minus 2 greater than or equal to 0. A square minus b square, a plus b and a minus b. I'm getting 3y minus 1 and minus y plus 3 greater than or equal to 0. Make the line there. One point is 1 by 3, other is 3. Negative, obviously negative, positive, negative. Careful रहने की थोड़ी सी जरूरत. So this is the portion what we required. So this is 1 by 3 to 3. Very good. It is very good. Yes. See this, a complete solution. क्या प्रॉब्लम हुआ इसका?
What is the problem in this? बहुत सारी वेराइटी इसमें होती है एंड क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी हो जाएंगे। अश्विन इट्स ओके। रेंज निकालने में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मतलब हमेशा आपको मिलेंगे व्हेन यू हैव टू फाइंड रेंज एंड केयरफुली जस्ट यू हैव टू गो फॉर दैट। कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, राइट। फॉर्मेशन हमेशा कुछ ना कुछ आपके पास हमेशा आते रहेंगे, राइट। आई एम गिविंग यू एक और इसी तरह के क्वेश्चन, नॉट 3x² on x². Go for this. लोकेशन ऑफ रूट्स में ये पूरे कंसेप्ट यूज होंगे। दैट्स द रीजन लोकेशन ऑफ रूट्स को एक कंसेप्ट देने के बाद वी हैव टू गो फॉर दिस।
Only the calculation part, right? वेरी गुड मानस, बस में एक बार और चेक कर लो. 2 minutes for you.
So what we are getting, 49 minus 4y square plus 44y minus 96 greater than equal to 0. ट्रांसफर कर लेता हूँ सबको एक तरफ, b इजियर 4y square minus 44y plus 47. less than equal to 0, right? अब इसके रूट्स निकालना थोड़े से, ऑब्वियसली जो भी है y की वैल्यू 44 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, जो भी कॉमन आ रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है, तो 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 121 माइनस 47 अपॉन, इन दोनों के बीच में, दोनों जो रूट्स आ रहे हैं उनके बीच में इट हैज टू गो. ओके, सो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? सिंपल सा ही, इससे सिंपल क्वेश्चन ही मैं मानूंगा, हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है. एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का तरीका इतने कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो ABC में ही पूछा जाता है, समथिंग लाइक दिस. y is equals to everyone, careful, right? ये एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है IIT का, उस पर मैं आ गया हूँ अब. हाँ, find minimum value of this when it is given a greater than c as well as b greater than c and c greater than x greater than minus c, राइट? ये तीन कंडीशन गिवन है एंड उसके साथ बोला है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. ओके, डू इट फास्ट, आपके पास 4 मिनट का समय है इसके लिए.
y की वैल्यू निकालनी है, ABC के रिलेशन नहीं अस्मी, y की वैल्यू निकालनी है, ABC के रिलेशन का मैं क्या करूं, सॉल्यूशन मेरे को भेजना। नमन, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना सभी लोग। इट्स गिवन y is equal to this, obviously we have to solve. So this is the first method I'm going to do, right? In the first method, this is y into x plus c into y is equal to x square plus a plus b into x plus ab, right? X square plus a plus b minus y into x plus ab minus cy is equal to 0. In this, a is 1, the coefficient is 1, b is this one, and c is this one. So discriminant greater than equal to 0 means b square minus 4ac greater than equal to 0, right? So what we are getting is y square minus 2 y a plus b plus a plus b the whole square minus 4ab plus 4cy greater than equal to 0.
So from this I can say this is nothing but y square minus 2y a plus b minus 2c plus a minus b the whole square greater than equal to 0, right? If you are just keen about this, we can rewrite this as y square minus 2y a minus c plus b minus c plus a minus c minus b minus c the whole square greater than equal to 0. Something like this. Right, note down up to this, फिर आगे बताता. Okay everyone, this is the first method we are doing, right? ध्यान से पहले ही से very good Naman. Yes, it answers. Sir, in the last step, I am not getting that a minus c minus b minus c the whole square, where it is coming from. A minus which one beta? The last step, the last one, a minus c. Don't write. If you are not getting that, no problem. I'll solve by a different way. I have written this thing, right? A minus b as a minus c minus or b minus c. So c will be plus. So this will be cancelling out. So you are getting this. Do one thing. I'm not improvising this. I'm saying for this I can solve the quadratic, right? The quadratic will be y is equal to minus b plus minus in the root of b square minus 4ac. So for that sake, I was written this. If I write this whole square minus 4ac, right? So directly in that case, I'll get twice of a minus c and b minus c. That's the reason I have written that, right? 2. Right? And this b square minus 4ac, 2 is cancelling out from this. So y you are getting as a minus c plus b minus c plus minus, this will be twice of under root of a minus c, b minus c. So this I'm getting y is equal to under root of a minus c plus or minus under root of b minus c, the whole square. The calculation part is little bit complicated, right? Little bit complicated in that way, right? हाँ, simplify करने पर. Asmi, unmute yourself, please. Yes, sir. इसको simplify किया आपने बेटा? सर एक्चुअली मैंने क्या मिस्टेक की कि मैंने 2 बार डिस्क्रिमिनेंट निकाला और मैंने रूट से नहीं निकाला जैसे आपने भी किया, तो मुझे कोई प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था. मैंने आपको सेंड भी किया था. y की वैल्यू निकालनी है आपको ना, तो इसमें तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ऐसे करने पे. तो आपने y ही उड़ा दिया, y की वैल्यूज आएगी कैसे? ओके सर, हाँ अब क्लियर हो गया कैसे करते, पर पहले उस वक्त समझ में ही नहीं आया कि रूट्स निकालने होंगे. देखो
मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। तो कॉम्प्लिकेटेड है, अभी भी कहानी में अभी भी जान है, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एवरीवन सी द सेकंड मेथड। कुछ हिंट रहते हैं क्वेश्चन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिवन था आपको a greater than c, b greater than c and x greater than minus c, right? What is the meaning of this? x greater than minus c का मतलब हुआ x plus c must be greater than 0 and obviously b greater than c है, मतलब x plus a भी greater than 0 होना चाहिए, x plus b भी greater than 0 होना चाहिए। ये तीन के तीन मेरे पास greater than 0 होने चाहिए, ये तो मेरे कंफर्म हो गया, राइट? ये तीनों अगर greater than 0 है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नंबर जब भी पॉजिटिव हो या कहीं से हिंट आपको मिल रहा है कि ये पॉजिटिव होने जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर हो सके तो मैं किसी तरह से AMGM अप्लाई कर सकूं, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन, राइट? कैसे? अब वो कैसे आएगा दिमाग में, इसे देखें। तो यहाँ पर से मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, राइट? फिर भी आई हैव टू डू समथिंग, राइट? मैं क्या करता हूँ कि x प्लस सी को मैं थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ, राइट? तो x की वैल्यू हो गई t माइनस सी। तो x की वैल्यू मैंने रखा t माइनस सी प्लस ए, t माइनस सी प्लस बी अपॉन t, ये गया y। ओके, तो y मेरे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए माइनस टू सी इंटू टी प्लस ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, राइट, अपॉन टी, राइट? थोड़ा सा जनरली इसको देखते हैं क्या आ रहा है। टी प्लस ए माइनस सी बी माइनस सी बाई टी प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी। यहाँ तक सब लोग देख लें, यहाँ तक अगर कन्विंस हो, अच्छा लगा है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वो प्रोडक्ट रहेगा ना नीचे? क्या बेटा? फिर से बोले। सर नीचे वो प्रोडक्ट आएगा ना सर, ब्रैकेट में? नीचे बेटा टी स्क्वायर से टी कैंसिल हुआ, एक बार टी से टी कैंसिल हुआ, जो कांस्टेंट वाला है उसके नीचे टी आया। यहाँ तक सब लोग देख ले ढंग से। इफ यू आर एग्री विद दिस देन आई कैन प्रोसीड दैट वे। स्मी, मानस और कोई? एवरीवन राइट डाउन यस या नो, जो भी है लिखें, देन ओनली आई कैन प्रोसीड। मेरे ख्याल से यस लिखने में इतना भी बड़ा परेशानी नहीं है कि सभी लोग यस भी नहीं लिख सकते हैं। जिन्होंने लिख दिया है वो मत लिखना, कुछ लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। आई नो कि उनके आंसर्स आते ही नहीं हैं, मैं थोड़ा सा उनको वेट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली देख पाऊँ। Yes, over done. Is it okay? Yes, sir. Vineet, is it okay? Yes, sir. Vatsal, is it okay? Vaishnavi, is it okay? Yes, sir. Utsav, is it okay?
So it's okay. Yes, sir. Vatsal, is it okay? अनम्यूट करें वत्सल अपने आप को। क्या पूछना है पूछें। ये इतनी बार पूछने के बाद धीरे से नो लिख के आप नहीं कर सकते बेटा। क्या क्लियर नहीं है? इस क्वेश्चन में क्या क्लियर नहीं है ये पूछें। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज। Vatsal, I'm waiting, still waiting beta, still waiting. You have to ask, please ask. I'm writing again to you only. Just classes in between class hold किया हुआ है बेटा। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ वत्सल।
Okay, we have started with Vatsal. We have started with this only, right? ये आज हमने जो स्टार्ट किया था, this was the first concept I taught you. What you are not understanding in this, ये range of quadratic, right? Range of quadratic, y is equal to this is given. So you have to transfer y and you have to get the value by d greater than equal to 0. What you are not understanding in this, if you are not able to, बोलने में दिक्कत है बेटा तो आप लिख दो. What you are not understanding in this concept, we have started with this only. I guess this is very simple. What you are understanding, please make me clear this. What you are understanding? What you are understanding, please tell me. Okay, this is clear. The graph, this graph, through graph also you can do. So this graph is clear. Okay, very good. If it is in the form of linear by quadratic, quadratic 1 by quadratic 2 and quadratic by linear. So what you are not understanding in this? It's not elimination. It's for real values. We have to take d greater than equal to 0. Then only you will get the real values of x. Okay. Then after this, we are getting this question. वत्सल, what you are not understanding, कहाँ पर confusion हो रहा है बेटा? अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, प्लीज टेल मी. क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ये भी क्लियर हो गया, जो सेकंड कंसेप्ट था. What you are not understanding in this question, जो लास्ट वाले अभी क्वेश्चन किया उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है आपकी? So AMGM, I said कि AMGM you have to apply. I guess, sorry guys, थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया, but hope वत्सल समझ गए होंगे ना. तो x प्लस सी को मैंने t ले लिया, तो t लेने के बाद ये वर्किंग रही, राइट. ये वर्किंग के बाद मैं यहाँ पर आके स्टिक हो गया, राइट. एवरीवन इज ओके विद दिस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट. अरे आप लोग तो यस बोल दो यार, या लिख दो यस, कि एक एक को मैं बोलता जाऊं तब तो Yes, sir. बैंड बज जाएगी.
नाउ अब ये मेरे पास गिवन है, राइट, ये टी वेरिएबल है मेरा, ध्यान देना। AMGM लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये जो मेरे पास टी है और 1/t है, अगर ऐसा आ गया पॉजिटिव नंबर के साथ, क्योंकि A ग्रेटर देन B एंड C था तो ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ ऐसा आ गया, मतलब समझ जाओ कि आपकी लॉटरी खुल गई। क्यों ऐसा? कभी भी t प्लस कोई भी मान लो λ/t ऐसा फॉर्म है, तो AMGM इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकता, 1/2, राइट। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, आई गेस सभी लोग जानते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। तो t प्लस λ/t की जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू λ⁴ आ जाएगी। इज इट ओके? यहाँ पर जो लैम्डा मेरे पास है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो है t प्लस a माइनस सी अपॉन b माइनस सी अपॉन t ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस सी b माइनस सी, राइट। ये हो गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस सी b माइनस सी, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a माइनस सी b माइनस सी प्लस b माइनस सी प्लस a माइनस सी, राइट। ये मेरे पास, ओके। सो यू नो दैट b माइनस सी a माइनस सी का अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 10, इसी का होल स्क्वायर आता है ये। यस सर। ना कितना प्यारा, कितना एलिगेंट, कितना अच्छा सा सॉल्यूशन है, ये देखिए। ठीक है, यस सर। यस सर। ये अप्लाई अगर हम लोग सीख पाते हैं तो लाइक इससे बड़ी चीज नहीं होगी, बहुत आसानी से यू विल गेट इनटू द आंसर एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हमेशा आसान हो जाएंगे। यस स्निग्धा? सर वो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने लास्ट 2 स्टेप्स में क्या किया। कौन सा बेटा? ये AMGM लगाया यहाँ पर, तो ये स्टेप यस सर, उसके बाद ये जैसे AMGM लगाया तो इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को राइट साइड पे जो आ रही है वो हो गई, वो जो क्वेश्चन में था यहाँ पर उसकी मिनिमम वैल्यू मैंने बैठा दिया, तो वो बैठाने के बाद ये हो गया मिनिमम वैल्यू, और ये जो स्टिल दिया हुआ था वो हो गया ये ना। अब ये एक छोटा सा ध्यान से देखो तो फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ a माइनस सी प्लस अंडर रूट ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर ओके सर, गॉट इट। ना। अगर ये सब चीजें यूज होना IIT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो hope everyone is careful with this, right? Done? यस सर, डन। यस सर। एक मिनट सर। सी AMGM जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये t प्लस इसकी जो है मेरे पास t प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, राइट। दिस आई एम गेटिंग द मिनिमम वैल्यू, ये वाली चीज किसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये जो मेरे पास यहाँ है इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो ये मैंने यहाँ पर निकाला है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये मैंने उस जगह पर पुट कर दिया, राइट। पुट करने के बाद मेरे पास ये पूरा का पूरा, ये तो पहले से गिवन था और ये मैंने पुट कर दिया, राइट। ये अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है पहला क्या, ये है b माइनस सी अंडर रूट b माइनस सी का होल स्क्वायर अंडर रूट a माइनस सी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a माइनस सी b माइनस सी, ये आ गया b माइनस सी और a माइनस सी जो गिवन है उसके, राइट, उसका ये आ गया। विनीत, इज इट ओके? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। इतना जल्दी आंसर क्यों कर दिया? अभी मेरे को 15 मिनट लेता, तू भी ले सकता है बेटा।
नहीं आयुष ना, ऑब्वियसली दोनों तरफ से आंसर जाएंगे, ये तरीके से ना आंसर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा हमारा ना। एंड एक बात को समझना, आईआईटी का जब एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं ना, ये इंटेलिजेंस के एग्जाम से अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ है इंटेलिजेंसी पर मिनट। ये टाइम के अगेंस्ट आपको दौड़ना होता है, वहां पर ही दिमाग लगाने होते हैं क्या पॉसिबल है। तो ये जो भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, कोशिश मेरी है कि मैं डेवलप कर पाऊँ उस चीज को कि कैसे मैं टाइम के अगेंस्ट रन कर पाऊँ, एंड छोटी छोटी चीजों को कहाँ से पिक कर पाऊँ कि ये दिख रहा है तो यहाँ से मैं ये पिक करूंगा, मेरे आंसर्स के लिए मेरे को यहाँ तक जाने हैं, राइट। अगर कुछ ऐसा मैं कर पा रहा हूँ तो ऑलवेज विल बी इन लाइक एक सेफ मोड पर रहूंगा, सॉल्व करना आसान होगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ सकता हूं। जैसे अगर मैंने ये दिया, नेक्स्ट अपॉन राइट, इसके बारे में आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसका रेंज क्या होगा। ध्यान से ना,
यहाँ अल्फा वेरिएबल नहीं है शुभम ना, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा के टर्म्स में ही आंसर आना चाहिए शुभम। समझ रहा है, जो आंसर आना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही होना चाहिए, राइट, तो दैट यू हैव टू चेक। लेट्स स्टार्ट ना, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। सर प्लीज 2 minutes। कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसकी, बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी है ना, मेरे ख्याल से चलो साथ साथ में करते चलते हैं ना। वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। ए की वैल्यू यहाँ पर y है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, c की वैल्यू 1 माइनस वाई, राइट। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर मीन्स कॉस टू द पावर 4 अल्फा माइनस 4y 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीराइट करता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, वेरी गुड, माइनस 4y स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा भी है ना, इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा 4y स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा राइट, एक कैंसिल ही कर दिया, बचा जो सिर्फ उसे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बड़ा प्यारा कैलकुलेशन हो सकता है, प्लस 1 माइनस 1 2y माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाओ, 2y माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 2y माइनस 1 प्लस साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, सो माइनस इन्फिनिटी टू लोएस्ट वैल्यू जा रही है वहाँ 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2, राइट, एंड y की वैल्यू 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 टू इन्फिनिटी, ये दोनों आए। हाँ, थोड़ा सा यू हैव टू इम्प्रोवाइज, हाँ थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। यस अमन, सर इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थे क्या सर? ऑप्शन थे मतलब बेटा? सर क्योंकि मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा के टर्म में इक्वेशन बनाई थी जिससे कि मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा एलिमिनेट हो गया और फिर मेरे को बस एक्स और वाई बचा। कॉस अल्फा के टर्म्स, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो उस टर्म में क्यों निकालेंगे? क्योंकि एक्स एंड वाई से निकालते हैं, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को एलिमिनेट कर दिया। कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है ना, कॉस अल्फा कांस्टेंट मतलब समझ रहा है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री मान ले दी हुई है, हाँ, या 0 डिग्री दी हुई है, कुछ भी है, तो 0 है मतलब 1 है, तो 1 इज इक्वल टू सम निकालने का कोई मतलब नहीं था ना। हाँ सर, बात समझ रहे, वो अल्फा कांस्टेंट का मतलब हो गया कि अल्फा के टर्म्स में ही आंसर आएगा, जो आंसर होंगे या तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा हो जा रहा होगा आखिरी में, अदरवाइज वो टर्म्स अल्फा के टर्म्स में आ रहा होगा। ओके यस सर। ओके एवरीवन, वत्सल क्लियर है बेटा? ये समझा कि फिर से बताऊं? ओके ना, तो इसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइज होने के चांसेस होंगे क्वेश्चन में, एंड ये ऐसी जगह है जो
परफेक्शन करते 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 बहुत अच्छी आ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है यहाँ, मैं दूं y is equals to x square plus 2x minus 11 upon x minus 3, right? x belongs to real, ठीक। फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, x की वैल्यू दी हुई है वो रियल है। ये देखना चाहूंगा आप कैसे इसको इम्प्रोवाइज करते हो, कैसे इस क्वेश्चन को ले जाते हो। Very good, Siddhi. Very good. Pranaya, very good. Kevin, Pritin, very good. थोड़ा हिम्मत रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। वेरी गुड वैष्णवी।
जल्दी से कौन एक्सप्लेन करेगा? अस्मी तेरा आंसर नहीं आया अभी तक, आ गया? कहाँ लिखा तूने? ये बड़ा दुनिया बड़ी अजीब सी है, किसी का नाम लो तो टेंशन में आ जाता है, किसी का नाम ना लो तो टेंशन में आ जाता है। Asmish, your answer is very much right, but everyone प्लीज अंडरस्टैंड, ओपन एंड क्लोज इंटरवल को समझो। अब बहुत दिन हो गया इन चीजों को करते हुए। हाँ, ओपन एंड क्लोज इंटरवल को समझो। आए, अस्मी एक्सप्लेन करेगी जल्दी से, जल्दी। हाँ सर, ओके। तो सर सबसे पहले वो जो रेंज वाले मेथड उससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, और फिर y-2 का होल स्क्वायर 4 into -1 into -3y+11 का एक क्वाड्रेटिक आया, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आ रहा था कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर वेवी कर्व मेथड लगा दिया देखने के लिए कि कौन से वैल्यूज में ग्रेटर देन 0 होगा, और आंसर आ गया। ये कैसा लग रहा है देखो? क्या बोलती हो? y is equal to t plus 4/t plus 8, AMGM लगाया, 4 12। पॉजिटिव होगा तो ये 12 से इंफिनिटी चला गया, नेगेटिव होगा तो -4 आ गया, -इंफिनिटी से 4 आ गया। आई गेस यही सबका आंसर आया होगा। हाँ सर ये भी मैंने ट्राई किया था, पर फिर उस ये आंसर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फोर्थ मेथड वो यूज किया था, तो इसलिए। ओके, बट दैट इज द मेथड। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मानस कुछ बोल रहा बेटा? यही लगाया था क्या? हाँ सर, ये मैंने मेथड लगाया था, लेकिन वेरी गुड, नहीं आ गया। इट्स ओके एवरीवन, राइट? तो बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं एंड उसे सॉल्व करने का बड़ा प्यारा मेथड हो सकता है, राइट? AMGM अगर आप लगा सकते हो तो बहुत प्यारे तरीके से जाता है। अब आगे बढ़ूं, राइट? ध्यान देना, ये आपको रेंज निकालने की बात हुई कि रेंज निकालना है तब क्या करना होगा, किस तरह से वर्किंग होती है, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इसकी वर्किंग होती है, लाइक y is equals to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4. Do it fast.
Aska, very good. Very good, Suyas. Very good, Suyas. Aska, very good. वेरी गुड, वेरी गुड। देखना क्यों दिया ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना एवरीवन प्लीज। अरे सनीन गलत हो गया कुछ, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, राइट। एक मैंने अपने तरफ से -1 किया, ये +1 किया। ये छोटी छोटी बात है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? y की वैल्यू -1 करूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, -6x, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 1 आ गया। ये x नॉट इक्वल टू 0, 0 पर तो 0 आ ही रहा है, मतलब 1 आ रहा है। x से डिवाइड किया, x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 1, राइट। ये कोई खास काम नहीं करते हुए भी मैंने एकदम उसे वहां पर ले आया हूं जो मैं लाइक करता हूं। यहां तक में देखो, ये सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट। एंड वी नो दैट अगर यहां तक ये आ गया तो x प्लस 4 बाई एक्स, राइट। अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो x इज इक्वल टू 2 पर मिनिमम दे रहा होगा, मैक्स मिनिमम दे रहा होगा। और अगर ये -2 होगा तो उस पर ये x इज इक्वल टू -2 पर ये मैक्सिमम दे रहा होगा। यू नो दैट कि कहां पर ये इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 बाई एक्स पर मुझे मिलता है, मतलब x की वैल्यू +-2 पर यू विल गेट द सॉल्यूशन, राइट। तो x इज इक्वल, ये स्टेटमेंट इज क्लियर टू ऑल। x प्लस 4 बाई एक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी हो रही होगी, am और gm जब इक्वल हो, और वो इक्वल जब होता है जब दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए। तो x और 4 बाई एक्स अगर इक्वल होंगे तो या तो x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू -2 होगी। मतलब मिनिमम या मैक्सिमम जो मिल रहा है यही 2 और -2 पर मिल रहा है। मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता सकता हूँ इसके लिए फिर, कि अगर आपको ये मिल गया 2 और -2 पर ये मिनिमम या मैक्सिमम दे रहा है तो व्हाई टू बॉदर, राइट। आपको दिखाई दे रहा है -2 पर ये जो आ रहा है 14/2 दैट इज 7 एंड 1/7। ये आंसर आ गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। If you can see, write down yes if it is clear। नहीं क्लियर है तो write down no। वत्सल क्लियर है? नमन आस्क प्लीज बेटा।
सर वो एंड का पार्ट आप वापस समझा सकते हो क्या? x प्लस यानी 4/x है। होता क्या है ना, एम और जीएम के लिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है ना, तो इक्वलिटी साइन जो लेता है ना, इक्वलिटी साइन लेता है तब के लिए व्हेन बोथ द वैल्यूज, मतलब जो आइडेंटिटी गिवन है ना वो इक्वल रहे, राइट। तो x और 4/x यहाँ पर इक्वल होगा, वहीं पर वो मिनिमम या मैक्सिमम जो लेता है वो ले रहा होगा, राइट। तो आई एम सेइंग कि x इक्वल टू 4/x करने पर x की वैल्यू मेरे पास आ गई +-2, राइट। तो एक बार 2 और एक बार -2 में वी कैन सी दिस कि कहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमम दे रहा है। ओके सर। वत्सल, इज इट क्लियर? यस अस्मी? सर एक्चुअली मुझे आपका मेथड वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया, बट वो जो दूसरे वाले मेथड से मैंने किया था मेरा आंसर बहुत अलग आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक नाम की एक चीज होती है। अब हाँ सर बराबर है, बट मैंने 2 बार चेक किया, लग नहीं रहा कि कैलकुलेशन एरर किया है। नहीं सर, मैंने वही मेथड यूज किया था, आ रहा है। आएगा आएगा। सर ठीक है, मैं एक बार चेक किए बगैर न्यू शुरू मैथमेटिक्स करते शायद तो आएगा। भाषण दे रहा तो सुन ही नहीं रही हो। मैथमेटिक्स जो होता है ना वो वैसा ही होता है जैसे हमारे रिलीजन होते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होंगे, लेकिन गॉड में पहुंचने का सबका तरीका कई भी डिफरेंट हो सकता है, बट वही गॉड ऊपर एक ही है। तो मैथमेटिक्स का आंसर भी यूनिक है बेटा, वो यूनिक ही रहेगा, वो एक ही है, राइट। हमारे रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, उस रिलीजन में दिक्कत कहाँ पर हो जाती है इसको समझना। अच्छा मौका मिल गया मेरे को। इस रिलीजन में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यहाँ पर हो जाती है कि एक रिलीजन मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद उस रिलीजन में बहुत अधिक कंफर्टेबल नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब देखने लगा दूसरा रिलीजन नहीं। अब यूट्यूब वाला रिलीजन भी देख लिया, एक रिलीजन जो यहाँ पढ़ाई कर रहा है वो भी देख लिया, अब दोनों मिला के एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश होती है तो सब कुछ मिसअप हो जाता है, पता ही नहीं चलता गॉड कहाँ है। बात समझ गए? बिटवीन द लाइन समझ में आई बात? यस सर। अगर फॉलो कर रहे हो एक कंसेप्ट, यू हैव टू फॉलो द कंसेप्ट। अब उसके बाद में बैठ के यूट्यूब में देखने लगोगे तो गड़बड़ वाली सिचुएशन आ जाती है। तो प्लीज, हाँ, अगर इसे अप्लाई करके आप ये मेरे लिए कर पाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या कर पाए? x² - 2x + 4 अपॉन x² + 2x + 4, राइट। इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर x बिलोंग्स टू R। इसमें बहुत सारी चीजें बताने को है। हाँ, मैं एकदम बीच में ही स्टक हूँ अभी, बट ये सब जरूरी है जिसको बताना, तो दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग दिस।
वेरी गुड। अमन, शुभम, केविन, अमोक, प्रितेन, अस्का, वेरी गुड। मानस, चेक करो कैलकुलेशन। अस्मी, वेरी गुड। जेबल, वेरी गुड। प्रणया, वेरी गुड। वत्सल, डन। हरिप्रिया, वेरी गुड। पतिनव, Yes, sir. प्रितेन, जल्दी आंसर करो। विनीत, वेरी गुड। कियाना, वेरी गुड, जल्दी आंसर। उदय, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। वत्सल, राइट डाउन योर आंसर। बोलने में दिक्कत है कोई नहीं बेटा, लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट डाउन आंसर। यस प्रितेन, वेरी गुड। सुयस, सिद्धि, वेरी गुड। Send your solution please. I'll check. क्या रीजन है मैं निकाल दूंगा। Send me. See. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये सब के ना अगर चाहूँ तो फॉर्मूला बना दूँ, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता वो करना। राइट, +1 -1 किया तो ऑब्वियसली -4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, -4 अपॉन x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1। राइट, x प्लस 4 बाई एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √4 जो कि 2 होता है। तो ऑब्वियसली कब होगा तो x इज इक्वल टू 4 बाई एक्स, तो x की वैल्यू +-2। एक बार मैं +2 एक बार -2 पुट कर देता हूँ तो आई गेस यू आर गेटिंग 1/3 एंड 3। स्निग्धा, वैष्णवी, वेरी गुड। वत्सल, क्या दिक्कत बेटा? ये देखिए आपके सॉल्यूशन मैंने दिया, यहाँ तो आ रहा है सही। कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट। अरे और छोटा हो सकता है अमन, दिखाऊं मैं कैसे आंसर पहले ही निकाल लेता हूं वो दिखाता हूं। हाँ, अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहे हैं सर, क्या हो रहा है। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अगर इस तरीके में क्वेश्चन गिवन है ना तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को सीधा कंपेयर करता हूँ। x की वैल्यू +-2 -2 रखूंगा तो मैक्सिमम देगा जो कि 6/2 आ रहा है, जो कि हो गया 3 +2 पर मिनिमम आंसर। राइट, चलो आप अगर चाहते हो तो एक लगा के दिखाओ इसे। आई गेस मैंने काफी सारे ये कर दिए हैं, मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, बट एक पहले जो कर चुका था वही क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। सर आप वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने लास्ट में बताया? कुछ नहीं बेटा, केवल ये जो है ना सिमेट्रिसिटी आ रही है तो x और 4 जो है दोनों को इक्वेट कर दिया, एक्स स्क्वायर और 4 मतलब जो एक्स स्क्वायर था और जो कांस्टेंट था उन दोनों को इक्वेट करके x की जो वैल्यूज आई वो पुट कर दिया, एक बार मिनिमम के लिए एक बार मैक्सिमम के लिए। गेट इनटू दिस, ये वाले पे अप्लाई करके देखो, देखो जादू लग जाएगा। डन सर। आंसर तो पहले ही निकाल चुके हो तो नो नीड टू से कि क्या आंसर आएगा। यस सर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू +-1, एक बार 1 रख दिया तो ये आ गया 1/3, -1 रख दिया तो आ गया -1/3।
ओके यस सर। तो ये एक वर्किंग रहा, लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये तो मैंने आपको रेंज निकालने का तरीका बताया। रेंज निकालने के लिए क्या क्या सीखा आपने जो आपके दिमाग में होना चाहिए। सॉरी टाइम कम पड़ गया मेरे को, आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाने की सोची हुई थी, बट सॉरी उतना मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइम का। मैंने y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा कैसे निकालना है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक होगा कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर होगा कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होगा कैसे निकालना है। एटलीस्ट इतना तो हम लोगों के पास अभी हाथ में है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इतने हम लोग जानते हैं जिसको हमें निकाला जा सके, राइट। 2-3 तरीके हमने देखे उसमें। हमारा पहला तो था क्रॉस मल्टीप्लाई का, राइट। सेकंड हम लोगों ने इसी में AMGM देखा, लेकिन AMGM में हमने ये ख्याल रखा कि वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड हम लोगों ने राइट कुछ -1 +1 कुछ ऐसा करके हमने रिड्यूस करके फॉर्म को देखा, राइट। ये 3 मेथड आपने आज सीखा जिसको आपने यूज किया रेंज निकालने के लिए, राइट। अब लेकिन ठीक है ना, अब लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे y इज इक्वल्स टू x minus a x minus c upon x minus b, right? X belongs to R. Right, x is not equal to b. तो इस समय आपको रेंज निकालना है ना, रेंज निकालना है। इफ a greater than b greater than c है और c greater than b greater than a है, राइट। या फिर हाँ सॉरी, ये हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। क्या दिलाया यास्मीन ने, पहले भी किसी ने बोला था, सॉरी मैं उस समय फ्लो में बढ़ गया था। यस, एडवांस का एग्जाम नेक्स्ट आप लोग के होने जाएंगे, तो इसमें ये